India-Pakistan relations, because India-Pakistan relation is one such topic which is never going to fade out. Fine, it's a perennial issue and it will be there. So let's see. See, since independence in 1947, both countries have fought three major wars, one undeclared war, and have been involved in armed skirmishes and military standoffs. The dispute over Kashmir is the main center point of all these conflicts. Fine, except for the Indo-Pakistan War of 1971. अगर हम Indo-Pakistan War 1971 को हटा दें, then the dispute over Kashmir is always there. Fine, then this Indo-Pakistan War of 1971 resulted in the secession of East Pakistan, which is now Bangladesh. Fine. Now, several efforts were made to improve the bilateral ties, which were successful in de-escalating tensions to a certain extent. However, these efforts were hampered by frequent terrorist attacks and ceasefire violations. Okay, so हम देख रहे हैं कि in right from the independence, ठीक है, we are in a constant struggle with Pakistan. Okay, moving on. अगर हम बात करते हैं पहला इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947 एंड 48 की, तो इट वाज द फर्स्ट ऑफ द फोर इंडो पाकिस्तान वॉर्स fought between the two newly independent nations. Okay, and this war was fought between the two nations over the princely state of Jammu and Kashmir that was under the control of Maharaja Hari Singh. Okay, तो at the time Jammu Kashmir was under Maharaja Hari Singh and इसके ऊपर ही ये पहला जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था हम दोनों के मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था. Fearing a revolt within the state and invasion from Pakistan, Maharaja Hari Singh made a plea to India for assistance, and assistance was offered by the Indian government in return to his signing an instrument of accession. So Maharaja Hari Singh, he expected that Pakistan will invade, and it eventually happened actually, but beforehand he signed an instrument of accession with the Indian government so that in case of any invasion, Indian government will send its troops and will help the state of Jammu and Kashmir. Fine. The war resulted in India securing 2/3 of Jammu Kashmir, including Kashmir Valley, Jammu and Ladakh. Pakistan controls roughly 1/3 of the state, referring to it as Azad या फ्री कश्मीर, हम जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं. ठीक है, तो ये स्टोरी थी इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 एंड 48 की. Next is Indo-Pakistan War of 1965. Okay, so the Indo-Pakistani War of 1965 initiated following the culmination of skirmishes that took place since April 1965. Pakistan's Operation Gibraltar was launched to infiltrate forces into Jammu Kashmir. Again, जो issue है वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर. तो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन एक्चुअली लॉन्च किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, टू इन्फिल्ट्रेट its forces into Jammu Kashmir to hasten the insurgency against India. India retaliated by launching a full-scale military attack on West Pakistan. Why I'm saying West Pakistan? Because till 1971, Bangladesh was East Pakistan. There was no Bangladesh till 1971. Fine. Now this war resulted in thousands of casualties on both sides and witnessed the largest engagement of armored vehicles and largest tank battle since World War II. Okay. The war ended after a UN mandated ceasefire was declared following diplomatic intervention by USSR and US and the subsequent issuance of the Tashkent Declaration. तो ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था, इट वॉज साइन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 एंड उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी. ओके, सो दिस वॉज अबाउट इंडो पाकिस्तानी वॉर. ओके, नाउ बात करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 का हुआ, या फिर इसको एक्चुअली बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है. सो सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वॉज जियोपॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू टू मेजर रीजन्स, West Pakistan and East Pakistan, which is dominated by Bengali people. So see, when India and Pakistan got partitioned, so ये बीच में इस तरह इंडिया था और इधर आपका
ईस्ट पाकिस्तान था विच इज़ प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान था। तो ऑब्वियसली वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जोग्राफिकल डिवाइड था, ठीक है। एंड ये जो ईस्ट पाकिस्तान था दैट वाज डोमिनेटेड बाय द बंगाली पीपल। ओके, so following the launch of Pakistan's military Operation Searchlight, a genocide on Bengalis in December 1971, and the political crisis in East Pakistan, the situation went out of control in East Pakistan. We know that there were elections इन पाकिस्तान, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान में जो थे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, खड़े हुए थे। एंड दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में थे शेख मुजीबुर रहमान, एंड शेख मुजीबुर रहमान जो थे ही एक्चुअली इमर्ज्ड विक्टोरियस, बट ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं किया था वेस्ट पाकिस्तान ने, एंड मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में। एंड a kind of genocide was there on the Bengalis in December 1971, and पूरा का पूरा political instability आ गई थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, and situation जो थी वो out of control हो गई थी। Now India intervened in favor of the rebelling Bengalis population. India के अपने reasons थे intervene करने के, ठीक है। Now Indian army invaded East Pakistan from 3 sides, and the Indian Navy imposed a naval blockade of eastern Pakistan, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में इंडिया है, ईस्ट पाकिस्तान इधर है, वेस्ट इधर है। तो अगर वेस्ट पाकिस्तान को अटैक भी करना है ईस्ट पाकिस्तान पे, ठीक है, इस तरफ से, तो इंडिया बीच में है, ठीक है। सप्लाईज़ कैसे पहुंचेगी ये भी एक इशू था वेस्ट पाकिस्तान के लिए, या फिर उन्हें पूरा जो है इस तरीके से घूम के जो है इंडियन ओशन वाया इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें इंडियन नेवी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड इट इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड ऑन ईस्ट पाकिस्तान, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पाकिस्तान्स नेवल स्ट्रेंथ। After the surrender of Pakistani forces, East Pakistan became an all-independent nation of Bangladesh. Okay, so this was a story of Indo-Pakistan war. See, we are discussing India-Pakistan relations, and we have discussed कि हम लोगों के बीच में जो भी वॉर हुए हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम 1947, 48 to 65 to 71, हमने उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया है। मूविंग ऑन, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में। तो ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1998 to 1999 द इंडियन आर्मी वेकेटेड इट्स पोस्ट एट हाई पीक्स, ठीक है। विंटर्स के टाइम में इंडियन आर्मी हाई पीक्स पे जो पोस्ट होती थी उन्हें छोड़ देती थी, कारगिल सेक्टर इन कश्मीर में, ठीक है। एंड एज इट यूज टू डू एवरी ईयर, हर साल इसी तरीके से किया जाता था। नाउ पाकिस्तानी आर्मी मेड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मूव अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारी जब LOC, ठीक है, सीज़ फायर के बाद में ये LOC हमारी प्रीवियस वॉर्स में डिटरमाइन की गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया, इस LOC को क्रॉस किया और इन वेकेंट पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया ना। तो इंडियन आर्मी डिस्कवर्ड दिस इन May 1999 व्हेन द स्नो thawed. This led to intense fighting between India and Pakistani forces. Backed by the Indian Air Force, the Indian Army regained many of the posts that Pakistan had earlier occupied. इसमें इंडियन एयरफोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान लेटर विड्रू फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शंस बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर एंड हाई कैजुअलिटीज़, ठीक है। एंड इसको हमने कभी भी एक्चुअली वॉर की तरह डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो हम 1-to-1 हुए हैं ऑलमोस्ट 4 times, ठीक है, मतलब ऑन अ फुल स्केल, अपार्ट फ्रॉम द इश्यूज़ दैट टाइम एंड अगेन जो है LOC पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। बट 3 फुल स्केल वॉर ऑफिशियली जो हुए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, अगर हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ये जो पूरा कश्मीर हमारा इशू है इसमें क्या है। सी, अगर आप देखो आज के टाइम में कुछ इस तरीके से करके ये लद्दाख हमने यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड कर दिया है। बट अगर हम इसको ना देखें, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये POK में आता है जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। इसी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया 1963 में पाकिस्तान ने ये वाला एरिया चाइना को सीड कर दिया था, ठीक है।
एंड यहाँ से चाइना का सीपैक जो है कॉरिडोर वो भी पास होता है, जिसकी वजह से इंडिया PRI में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ज्वाइन नहीं कर रहा है। फाइन, नाउ दिस इज़ अक्साई चीन, जहाँ पे आज भी इशू चल रहा है, गलवान वैली क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो आपको दिख रही है, जिसको हम LAC कहते हैं। नाउ ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज़ फायर के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई है। और ये है यहाँ पे कारगिल, जहाँ पे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सी, अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से मेजर डिस्प्यूट्स हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि जितने भी वॉर हुए हैं मेन इशू कश्मीर का रहा है, तो कश्मीर सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट है। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज, द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ कश्मीर हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ वॉर्स इन 47, 65 एंड a limited conflict in 1999, and frequent ceasefire violations and promotion of rebellion within the Indian side of Jammu and Kashmir, ठीक है। The then princely state remains an area of contention and is divided between the two countries by the line of control, जो कि हम अभी देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल से, which demarcates a ceasefire line agreed post 1947 कॉन्फ्लिक्ट। और 1947 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ये सीज़फायर लाइन जो है ड्रॉ करी गई थी, ओके। तो ये है कश्मीर। नेक्स्ट इशू जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, विच इज़ नॉट ऑफ दैट मच इम्पॉर्टेंस, क्योंकि हमें ज़्यादा न्यूज़ में सुनने को मिलता नहीं है, दैट इज़ दी सर क्रीक डिस्प्यूट, ओके। सी, सर क्रीक एक्चुअली एक 96 किलोमीटर की एस्चुरी है रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात इंडिया का एंड सिंध पाकिस्तान का, इसके बीच में पड़ता है। एंड द डिस्प्यूट लाइज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो यहाँ पे डिस्प्यूट एक्चुअली यही है कि ये जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो कौन सी होगी। दोनों कंट्रीज़ के अपने अलग अलग क्लेम हैं। पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो एंटायर सर क्रीक है उसको हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू 1914 अग्रीमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और कच्छ के रूलर्स के बीच में हुआ था। इंडिया कहता है कि हम इसको मिड वे से डिवाइड करेंगे, जो कि थालवॉग प्रिंसिपल भी कहलाता है, एज़ पर अ 1925 मैप, ठीक है। If one country agrees to the other's position, the former will lose a vast amount of exclusive economic zone that is rich with gas and mineral deposits. So although वहाँ पे कोई ऐसा obviously inhabitations नहीं है, but it is rich in gas and mineral deposits, ठीक है। और अगर कोई भी कंट्री अपनी क्लेम को छोड़ता है तो बहुत सारी टेरिटरी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की चली जाती है। तो दिस इज़ सर क्रीक डिस्प्यूट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट इज़ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन नदर्न लद्दाख इन द कराकोरम रेंज, okay, and it is the 5th largest glacier in Karakoram range and 2nd largest glacier in the world. It is the 2nd largest glacier in the world. Most of the Siachen glacier is disputed between India and Pakistan. दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादातर ये जो ग्लेशियर है ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड है। एंड बिफोर 1984 neither of the two countries had any permanent presence on the glacier. 84 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। अंडर द शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972 सियाचिन को एक बैरन एंड यूजलेस लैंड बोला गया था, ठीक है। दिस अग्रीमेंट ऑल्सो डिड नॉट स्पेसिफाई द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। व्हेन इंडिया गॉट इंटेलिजेंस, इंडिया को इंटेलिजेंस मिलता है, इंफॉर्मेशन मिला दैट पाकिस्तान वॉज गोइंग टू ऑक्यूपाई सियाचिन ग्लेशियर, तो इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत टू रीच द ग्लेशियर फर्स्ट। Following the success of Operation Meghdoot, the Indian Army obtained the area at a high altitude and Pakistan Army getting a much lower altitude, ठीक है।
सो एक्चुअली इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बोला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। तो ऑपरेशन मेघदूत के बाद में आज की प्रेजेंट कंडीशन जो ये है कि इंडियन आर्मी हायर एल्टीट्यूड्स पे स्टेशनड है सियाचिन ग्लेशियर में, एंड पाकिस्तानी आर्मी बहुत लोअर एल्टीट्यूड्स पे है। सो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ स्ट्रैटेजिक advantage in this region. Following the 2003 armistice treaty between the two countries, firing and bombardment have ceased in this area, though both the sides have stationed the armies in the region. दोनों ही कंट्रीज़ की आर्मीज़ हैं, एल्टीट्यूड्स में डिफरेंस है, लेकिन एक आर्मिस्टाइज ट्रीटी के बाद में बोथ कंट्रीज हैव डिसाइडेड दैट दे विल नॉट गो फॉर फायरिंग एंड बॉम्बार्डमेंट, considering in mind the ecology of the Siachen Glacier and the importance it holds for both the nations. Fine. So this is about Siachen Glacier. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की, टाइम एंड अगेन आपको सुनने को मिलता है दैट पाकिस्तान जो है ये इसने इस पे कंसर्न्स रेज़ किए हैं, इंडिया यहाँ पे डैम बना रहा है, मोस्टली चेनाब पे अगर डैम बन रहा होता है ज़्यादातर इश्यूज़ पाकिस्तान को उसी से रहते हैं। वेल अगर हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर्स रिवर्स फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज़ को इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर करते हैं, एंड इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, तो पहले हम रिवर्स देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट इज दिस इज़ इंडस रिवर, दिस इज़ झेलम रिवर, एंड दिस इज़ चेनाब, दिस इज़ रावी, बियास एंड सतलज। ओके, नाउ ये जो तीन ऊपर की रिवर हैं ये पाकिस्तान को दी गई हैं, ठीक है, एंड ये जो नीचे की तीन रिवर्स हैं ये इंडिया को दी गई हैं, ठीक है। मतलब इंडस रिवर ट्रीटी से ज़्यादा कोई एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो उसको ईजी ट्रीटी नहीं हो सकती है। अभी तक कोई भी ऐसी दो कंट्रीज़ नहीं हैं जिन्होंने इस तरीके की ट्रीटी साइन की गई हो जहाँ पे कि जो अपर राइपेरियन स्टेट है इस केस में जो कि इंडिया है, ठीक है, उसको कम जो है परसेंटेज ऑफ वाटर दिया गया है एज़ कम्पेयर टू द लोअर राइपेरियन स्टेट। फाइन, तो अगर हम वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में देखें, सी द वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर्स बिगेन मे इन तिब्बत एंड द हिमालयन माउंटेन्स इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, they flow through the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Sindh, etc. before draining into the Arabian Sea. Okay, through the Pakistani side. The partition led to conflict over waters on the Indus basins, as it was in such a way that the source of the rivers of the Indus basin were in India. तो जब partition हुआ तो इशू ये हुआ कि ये जो रिवर्स हैं इनको कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सोर्स थी वो ऑब्वियसली इंडिया में थी, ठीक है, ये तिब्बत के थ्रू इंडिया में ही आ रही थी, या कुछ रिवर्स की जो है इंडिया में ही से थी। तो जैसे मैंने बताया कि अपर राइपेरियन स्टेट है इंडिया। नाउ बोथ साइड्स वर एट ऑड्स ओवर हाउ टू मैनेज एंड शेयर दीज वाटर्स। तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी 1960 में। द अरेंजमेंट टू शेयर ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वर एड हॉक। द इंडस वाटर treaty is the water distribution treaty signed between India and Pakistan, and ये जो treaty थी ये वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर्ड कराई थी, ठीक है, and the International Bank for Reconstruction and Development. Now according to this treaty, 3 rivers, river Satluj, रावी एंड ब्यास, they were given to India for exclusive use, ठीक है, इन पे exclusive use है रावी, ब्यास एंड सतलज पे इंडिया का, and the other 3 rivers, ठीक है, कौन सी, इंडस, सिंध की जगह आप इंडस कह सकते हो, झेलम एंड चिनाब वर गिवन टू पाकिस्तान। नाउ दिस treaty failed to address the disputes since source of Indus basin were in India, having the potential to create drought and famines in पाकिस्तान। और हमेशा जब भी कोई डैम चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो इंडिया में अगर बनने की कोशिश होती है, ठीक है, तो पाकिस्तान को ये इश्यूज़ होने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जो भी स्टेप्स ले रहा है उससे पाकिस्तान में ड्रॉट या फेमाइंस आ जाएं। लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट had stated that India would no longer allow its share of river waters to flow into Pakistan in response to the Pulwama terror attack. ये बोला गया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ देंगे और हम वाटर नहीं जाने देंगे पाकिस्तान में, बट सी obviously this is not feasible and India being a responsible nation is not going to do that.
Fine. Now, according to the 1960 Indus Water Treaty, India can exploit rivers under its control without disturbing the flow or quantum. Now, India plans to divert its three rivers to the Yamuna. इंडिया के प्लान्स हैं कि हम जो ये जो नीचे की तीन रिवर्स हमें मिली हुई हैं ये हम यमुना में डाइवर्ट कर पाएँ कंसिडरिंग द वाटर क्राइसिस वी आर हैविंग बट लेट्स सी हाउ द प्लान गोज़ वी हैव टू लुक एट इट लेट्स सी पहले तो we just come out from this COVID crisis, the pandemic we are facing right now, and then we'll see all these issues. Anyways, अगर हम statically देखें तो this is the water dispute between India and Pakistan. नेक्स्ट इसमें हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सीज फायर वायलेशंस. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैज़ बीन एन इशू सिंस इंडिपेंडेंस. Despite the 2003 ceasefire agreement post-Kargil conflict, there have been regular ceasefire violations from the Pakistani side of the border since 2009, leading to the death and injury of security forces and civilians on both sides. Fine. Now, the government massive armed retaliation to Pakistan ceasefire violations led to a large rise in the large number of infiltrations of terrorists from across the LOC. पठानकोट एक्ट के बाद में एंड उरी अटैक के बाद में it resulted in the seizing of any effort to undertake bilateral talks between the two countries, with Indian PM declared that talks and terrorism cannot go hand in hand. ठीक है, so right now we have distanced ourselves from Pakistan because of the stand of government that talks and terrorism cannot go hand in hand, right? So this was followed by surgical strikes by Indian army across the LOC to target the terror infrastructure in POK. इंडिया का जो करंट स्टैंड है वो ये है दैट इट विल नॉट अंडरटेक टॉक्स अंटिल पाकिस्तान टैकल क्रॉस बॉर्डर terrorism. Pakistan, in contrast, is ready for talks but with the inclusion of Kashmir issue, and India doesn't want to include Kashmir issue because India considers it as an internal matter of security, that it is our internal matter. We don't have to talk with respect to this issue with you. Okay, so this is the thing. नेक्स्ट जो कि अभी हम अपनी लिस्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में ऐड कर सकते हैं दैट इज़ कुलभूषण जाधव केस. ऑब्वियसली we all know what was the issue. A retired naval officer, he was arrested in Iran-Pakistan border in Balochistan region by Pakistan. Pakistan accused him of espionage and spying. ठीक है, he was sentenced to death by Pakistan's military court. India ने ये state करा that he was a retired naval officer who was in Iran on a business trip and was falsely framed by Pakistan. Now, India many times demanded consular access of Jadhav, which was rejected by Pakistan, citing national security. So, because of this, India approached International Court of Justice, ICJ, which comes under United Nations, obviously, and stating that Pakistan was violating Vienna Convention by denying consular access. So, now what happened? ICJ asked Pakistan to review Jadhav's death sentence and allow consular access to Kulbhushan Jadhav. Okay. सो अभी तक यही चल रहा है. अभी तक कुछ ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस केस में नहीं हो पाई है. मूविंग ऑन, वे अहेड क्या हो सकता है? अगर हम वे अहेड की बात करें सो सी रिफॉर्मिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पाकिस्तान में होते हैं बट हमें भी पता है दैट पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट वेयर more than the civilian government, the military is strong. Fine, actually military rules the government, so that's why we call it as deep state. Now, despite the democratic elections in Pakistan, the military wields the real power in the country, and this holds true especially on matters of defense, national security and foreign policy. There's a strong political reform in Pakistan is needed. The one that focuses on the welfare of the Pakistani nationals is vital to improve its relations with India. Fine. So, reforming Pakistan's political structure. Now, obviously, that reforms has to come up from within the Pakistan. There has to be a demand from the people of Pakistan. Okay. Next, what we can do? People to people relations. Steps must be taken to facilitate travel between the two countries. We have to ease up visa regimes, provide security for tourists, set up student and faculty exchanges, and invite professionals, intellectuals, and artists. See, now this can be also a controversial issue, that why should we invite artists in India when they don't want Indian artists to go there and do performances and all. Obviously, the process cannot be exclusive. Fine, the process has to go from both the sides. Okay, we can promote trade,
दैट ओके, बट अभी रिसेंटली ये हुआ दैट पाकिस्तान ने यूनिलेटरली ट्रेड रिलेशंस जो हैं इंडिया के साथ में तोड़ दिए, ठीक है, आफ्टर द व्हेन द आर्टिकल 370 वाज स्क्रैप्ड, तो पाकिस्तान ने यूनिलेटरली ट्रेड रिलेशंस को तोड़ा. नेक्स्ट, प्रमोटिंग सॉफ्ट डिप्लोमेसी. यूज़ ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी टू प्रमोट हाइड्रो डिप्लोमेसी हम यूज़ कर सकते हैं. कल्चरल डिप्लोमेसी हम यूज़ कर सकते हैं टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स. देन promotion of cricket diplomacy, that is the use of cricket as a diplomatic tool to overcome differences between the two countries. Okay, cooperation to address common issues. इसमें एक चीज़ और भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी करतारपुर कॉरिडोर जो है स्टार्ट हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी में आ जाता है, दैट ऑल दो बोथ द कंट्रीज आर मेंटेनिंग डिस्टेंस एंड इंडिया इज ऑलरेडी टोल्ड दैट नो टॉक्स, that talks and terrorism do not go hand in hand, but even then we both worked on the Kartarpur corridor, ठीक है. So this such type of initial steps can be taken. Apart from that, cooperation to address common issues. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं विच आर ग्लोबल इन नेचर. ऐसा नहीं है दोज प्रॉब्लम्स आर ओनली गोइंग टू अफेक्ट इंडिया और ओनली गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू अफेक्ट बोथ द कंट्रीज इक्वली. Natural disasters, they can be dealt with through cooperation from both the sides. Fine. So the perfect example can be the locust attack that we have seen last year. Pakistan was equally affected and so too India was affected. This time India's western part was also affected. Even the locust attack was even seen in this Uttar Pradesh as well. Fine. So these type of problems can be handled if we can cooperate somehow. Fine. So this is with it, and thank you.